پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم یہ آج جانیں گے کہ خدا کن لوگوں سے خوش ہے، اور دوسری بات یہ سیکھیں گے کہ اگر ایک شخص سے خداوند خوش ہے تو اس شخص کو کیا فائدہ ہے۔ اگر ایک شخص سے خدا خوش رہے یا خوش ہے تو اس شخص کا کیا بھلا ہوگا، اس کو کیا فائدہ ہے کہ اگر خدا اس سے راضی رہے۔ آج اب ان دو بھیدوں کے مطابق جب سیکھیں گے تو یقیناً آپ سبھی برکت پائیں گے۔ کن لوگوں سے خدا آج خوش ہے، اور دوسری چیز جو سیکھیں گے کہ اگر ایک شخص سے خدا خوش ہے تو اس کو کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے ایک بات، ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، چاہے وہ ایک جسمانی برکت ہو، وہ شفا ہو، وہ مالی برکت ہو، سرفرازی ہو، اس کے لیے بائبل مقدس کے مطابق دو طرح کے طریقے ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں ہم شیطان کو اس کی راہوں پر برائی پر چل کر کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک وہ راہ ہے کہ جس میں ہم خدا کی فرسٹ بادشاہی راست بازی کو تلاش کرنے کے بعد اس میں ہم لوگ خدا سے وہ سٹرگل کر نہیں لیتے۔ خدا کا صرف ایک وعدہ پورا ہوتا ہے کہ تو میرے کلام کے پیچھے، تو میری راست بازی بادشاہی کے پیچھے چل تو میں تجھے سب چیزیں دوں گا۔ اس میں بے شک آپ کو خداوند گھر دے، آپ کو خدا پھر ساری بادشاہی کو پھیلانے کے لیے سورسز دے، آپ کو خدا پیسے دے، آپ کو گاڑی دے، کچھ بھی دے، لیکن اس ٹائم پر آپ کے من میں ایک چیز ہوگی، جو چیز آپ خدا سے لوگے راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کے بعد، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی۔ جیسے کہ میں نے جی اس لیے پیسہ لینا ہے تاکہ میں دوسرے لوگوں کو اکڑ دکھا سکوں، میں اس لیے پیسہ کمانا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو میں بن کے دکھاؤں۔ نو، خدا کے نزدیک اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا جب بھی کسی کو چاہتا ہے کہ وہ برکت پائیں تو اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کی بادشاہی اور اس کے جلال کے لیے وہ لوگ استعمال کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور تم مجھ سے مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ بائبل مقدس کہتی ہے تمہیں اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ آج لوگوں کی سوچ کیا ہے، ہمارے پاس اگر گاڑی ہو، بنگلہ ہو، سب کچھ ہو تو اس لیے ہو تاکہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں، یعنی دوسروں کو دکھاوے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ چاہتے ہیں ہمارے پاس آج سب کچھ ہو۔ مثال ایک دو گھرانے ہیں، ایک گھرانے کی سوچ یہ ہے کہ صرف میں خدا کے لیے سب کچھ کروں اس لیے میرے پاس پیسہ آئے، اور ایک گھرانہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے، گاڑی بنگلہ آئے تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو، دنیا والوں کو بن کے دکھا دوں۔ تو جہاں آپ کی جسمانی خواہش پیدا ہوگی اس کا مطلب ہے وہ غلط ہوگا، اور جہاں آپ کو یہ ہے کہ مجھے پیسہ، مجھے دولت، مجھے شہرت، میرے پاس لاکھوں، میرے پاس کروڑوں اس لیے آئیں کیونکہ میں بادشاہی کے کاموں کو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ برکت جو آپ کو ملے گی اس میں سب سے پہلی بات یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی کبھی بھی کوئی بھی سوچ آدمی کے خلاف نہیں ہوگی۔ آپ کا پیسہ ہوگا تو آپ کو ہر گھڑی یہ لگا رہے گا میں خدا کے کام کے لیے، خود بے شک وہ خدا میں لوگوں کی مدد کرنا ہو، بے شک وہ چرچ کا کام ہو، بے شک وہ بادشاہی کو کہیں بھی پھیلانے کا یا کہیں آنے جانے کا کام ہو، وہ ہوتا ہے۔ تو آج آپ لوگ سیکھ رہے ہو کہ کن لوگوں سے خدا آج خوش ہے۔ مقدس میں سے پڑھیں گے زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت کو بڑے دھیان سے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، خدا ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے اور ان سے جن کی امید اس کے رحم پر ہے۔ ہم نے آیت کا ٹاپک کیا ہے کہ کن لوگوں سے خدا خوش ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا ان لوگوں سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا لکھا اور ان سے بھی جن کی امید اس کے رحم پر ہے۔ یہ جو دو باتیں ہیں، لیکن اس کی جب آپ مثالیں آج سمجھیں گے تو یقیناً آپ کو برکت ملے گی۔ سب سے پہلے خدا کن لوگوں سے خوش ہے آج بھی اور کلام کے مطابق بھی، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے بدی سے کنارہ کرنا۔ اگر آج ایک شخص ہے اور وہ صرف منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں جی، مجھے خدا کا بڑا ڈر ہے جی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی نشے، کوئی بری باتیں، کوئی پاپ، کوئی بدی، کوئی گناہ یا کسی نہ کسی انسان کے خلاف رہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق مثال میں اگر پڑھیں تو لکھا کہ خدا کا ڈر بدی سے کنارہ کرنا ہے۔ اگر ایک شخص بدی سے مراد صرف برے گناہ نہیں ہوتے، بدی آپ کے دل کی ہے۔ یہ خدا یسوع نے کیا سکھایا کہ جو چیزیں دل سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یسوع نے کہا برے خیال،
खूनरेजियां, हसद, मगरूरी, चुगलियां, बदगोइयां, ये दिल से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। इसलिए ये खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा से डरने का मतलब है बुराई, बदी, गुनाह, किसी भी तरह की सोच किसी के खिलाफ हो, जी मैंने इसको ऐसा कर देना है, मैंने इसको वैसा कर देना है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है। बाइबल कहती है कि वो शख्स जिसके अंदर इस तरह की बुराई पाई जाती है वो खुदा से नहीं डरता। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो खिदमत के पहलू में भी हैं, राइटर थे, वो गीत लिखते थे, लेकिन वो अपने मुंह से कहते थे हमें खुदा का डर है, खुदा का डर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर गुमराही की एक रूह ने कब्जा किया था। क्या? अब वो स्मोक भी करते थे और हर टाइम किसी ना किसी की बदगोई भी करते रहते थे। तो मैं जब उसकी लाइफ को देखता तो मैं कहा यार ये लिखता तो बहुत जबरदस्त है और हर टाइम बादशाही कलाम की बातें भी करता है, लेकिन ये क्या है, ये स्मोक भी करता है, सिगरेट पीता था, और दूसरा वो हमेशा बदगोई ही करता रहता था। जिसके पास बैठना किसी तीसरे की बदगोई करनी, जिसके पास बैठना तीसरे की बदगोई करनी। खुदा से नहीं डरता क्योंकि ये गुमराह है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक गुमराही की रूह भी लोगों पर नाजिल हो जाती है। आपको ये लगता है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है गुमराही की रूह तुम्हारी अक्ल बंद कर देती है और तुम्हें ये लगता है कि जिस खुदा की हम खिदमत कर रहे हैं हमें वो निजात हो जाएगी, निजात मिल जाएगी, जबकि नो, गुमराही की रूह आपको सदा खिदमत करवा सकती है लेकिन आपको कभी निजात याफ्ता नहीं करवा सकती। अब सोचें, सिगरेट खुदा की बादशाही के लिए एक गुनाह है कि नशा करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब वो क्या करता है, वो कह रहा है मैं जी खुदा का डर है जी, खुदा का डर है जी। या मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने रिश्तेदारी में एक गुमराही की स्पिरिट को लिया हुआ है। क्या कि लोगों में, रिश्तेदारों में अक्सर लड़ाई होती है। अक्सर वो लड़ाइयाँ इस वजह से नहीं होती कि हम लोग गलत बोले हैं। कभी कभार जब आप लोग प्रेयर में बढ़ते हैं तो खुदा आपके कुछ नातों से आपको अलग ले जाना चाहता है और आप लोग ये सोचते हो नहीं जी हम लोग खुदा का डर है जी, इस वजह से हम बार बार इनके पास जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, फिर सुलह हो जाती है। हर क्रिसमस से पहले जिस रिश्तेदार के साथ आप जुड़ते हो उसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है और आप ये सोचते हो नहीं जी खुदा का डर है, इस वजह हर साल मैं सुलह कर लेती हूँ। नो, ये खुदा का डर नहीं है। इसका मतलब आपको गुमराही की ये स्पिरिट में घेरा हुआ है। आपको ये पता ही नहीं चला कि खुदावन जब किसी की पुकार सुनता है, खासकर उनकी जो खिदमत में चलना चाहते हैं, तो खुदा आपको छांटी करना शुरू करता है। खुदा आपको छांटी कैसे करता है कि आपने प्रेयर की, खुदा ने आपके बेशक रिश्तेदारों में से कोई लोग हो, दोस्तों में से हो, मोहल्ले में से हो, खुदा उनका रूह आपको अलग करना शुरू कर देता है। बाइबल क्या कहती है कि खुदा उनसे खुश है जो उससे डरते हैं। तो खुदा का डर आज लोगों को पता ही नहीं है। आज गुमराही की स्पिरिट है हर तरफ। लोग कहते हैं कि मैं खुदा से डरता हूँ, लेकिन उतना ही उस बंदे के खिलाफ उसे मारने के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं जी मैं खुदा से डरता हूँ, लेकिन उतनी ही बदगोई, चुगली, नपाकी, हरामकारी, ज़िनाकारी करते हैं। लोग कहते हैं मैं खुदा से डरता हूँ जी, लेकिन उतना ही बुरा देखते हैं और बुरा सोचते हैं। क्योंकि आज लोगों की नजर में खुदा का डर ये है कि बस ये खुदा की खिदमत करते जाओ बस। नो, बाइबल में ये नहीं लिखा। बाइबल में कहा खुदा उनसे खुश है जो उससे डरते हैं, और ये भी लिखा है कि खुदा का डर बदी से किनारा करना है। जो शख्स गुनाह, बदी, बुराई को अपने अंदर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपको ये चीज बखूबी पता है। अगर फजल के दौर से पहले पुराने अहदनामा में भी चले जाओ तो खुदा ने बनी इसराइल को सिर्फ यही बात समझाई थी कि तुम गैर मबूदों की प्रस्तिश मत करना, तुम उनके पीछे ना जाना। 10 हुक्मों में क्या लिखा है कि अव्वल तुम्हें खुदा को मानना, फिर आगे इसी तरह 10 के 10 हुक्म, चोरी ना करना, जिना ना करना, झूठी गवाही ना देना, माल का लालच ना करना, बेगाने का लालच ना करना। ये सारी चीजें क्यों खुदा ने कही? इनमें यही है ना कि तू ये बुरे काम मत करना। इसका मतलब खुदा से डरने वाला शख्स वो है जो बदी गुनाह से दूर रहता है, बेशक वो सोच की बदी हो। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो मुंह से बुरा तो नहीं बनते, लेकिन उनके ज़हन में कोई ना कोई किसी के खिलाफ जब चुगली कोई बुरी बात चलती है तो वो उनके पूरे बदन को नापाक कर देती है। यीशु के कलाम के मुताबिक कि जो चीज अंदर से निकलती है वो आदमी को, अक्सर लोग ये सोचते हैं ना, वो जिस तरह यीशु मसीह के पास भी आए, फिकी फरीसी जी तेरे शगीद बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, ये नापाक है। नापाक इंसान किसी भी गंदी जगह पर बैठने या गंदी चीज को छूने से नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। जिस तरह पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे, एक शख्स कह रहा था जी मेरी नापाकी इससे ज्यादा होती है जी, कोई बच्चा यूरन कर दे जी,
तो यूरिन वाली जगह पर मैं बैठ के प्रे नहीं कर सकता, या जी मेरा हाथ लग जाए तो मैं प्रे नहीं कर सकता, कपड़ों को लग जाए मैं प्रे नहीं कर सकता। नो, ये नापाकी नहीं है। सही बोल रहा हूं? नापाकी दिल से शुरू होती है। एक बच्चे का यूरिन लग जाए तो वो नापाकी हो गई। और अगर सारा दिन हमारे दिल में, हमारी सोचों में किसी को गिराने की बात है, किसी के पीछे लालच है, या मेरे दिल में हसद आता है जी ए बंदा थल्ले डिग जाए तो मैं उत्ते बच जाऊं, तो वो नापाकी नहीं है। अब देखो किस तरह लोगों ने खुदा के कलाम में गुमराही की रूह को डाल दी है। क्या खुदा कहता है जो चीजें अंदर से, दिल से, यानी तुम्हारे सोचो ख्यालों से निकलेंगी ना, वो तुम्हें नापाक करेंगी। और लोग कहते हैं नहीं जी, लोग किसी चीज को छूने की वजह से नापाक हो जाता है। ये नापाकी जिस्मानी वो उस टाइम पर थी जब शरीयत थी, कि शरीयत में लिखा गया हाँ ड्रेस भी इस तरह का पाक हो, पवित्र हो। अब आप मुझे ये बताएं, एक शख्स है जिसके पास, बेचारे के पास पहनने के लिए सिर्फ 2 कपड़े हो, वो एक धोता और एक पहनला, एक धोता एक पहनता, तो ऐसा शख्स अगर उसका दिल पाक हो कि ना किसी की तरफ बुरा देखता है, ना बुरा सोचता है, ना करता है, बल्कि वो पाक और पवित्र बन जाता है, तो आपकी नजर में क्या वो नापाक है? कि वो इतने दिन ड्रेस नहीं बदल रहा तो नापाक है? नो, यीशु के मुताबिक नापाकी कुछ और चीज है और दुनिया ने कुछ और बना दिया है। आज लोग कह देते हैं लो जी इस चीज को ऐसे कर लिया तो नापाक है, जबकि बाइबल ये कहती है जो चीज अंदर से निकलती है, बाइबल कहती है बुरे ख्याल अंदर से आते हैं, बदगोइयां अंदर से निकलती हैं। इंसान पहले सोचते ही है ना कुछ बुरा बोलने से पहले कि मेरे दिल में आ रहा है इसके खिलाफ, ये ऐसे बोल दूं, बाइबल कहती है तुम्हारी सोचें तुम्हें नापाक बना देती है। तो आज क्या हम सीख रहे हैं कि खुदा का डर क्या है? बदी से किनारा, यानी किसी भी तरह की बुराई से अगर आप बाज रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या है? खुदा से डर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं जी, खिदमत करना खुदा का डर नहीं है, ये याद रखो। खिदमत तो एक वो चीज है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सारी कौम के सामने मेरी बनादी करो। ये तो एक यीशु मसीह ने काम दिया कि तुम सब लोगों के सामने जाकर बशारत का काम करो, ये डर नहीं है। खिदमत करना डर का नाम नहीं है। अगर आप खिदमत नहीं भी करते और आप अगर बदी गुनाह बुराई से बाज रहते हो तो इसका मतलब आप खुदा से डरते हैं। बाइबल में लिखा नूह मर्दे रास्तबाज था, खुदा के साथ चलने वाला था, तो इसलिए खुदा से क्या कि वो उस टाइम पर, आपको सबको पता है कि नूह के टाइम पर खुदा ने क्यों सारी दुनिया को खत्म कर दिया था? क्योंकि बाइबल कहती है बदी गुनाह बुराई बहुत बढ़ गई थी, इसलिए खुदा ने सोचा कि सबका नाश कर दिया जाए, सबका खात्मा कर दिया जाए। ऐसा ही था। तो जब खुदावन ने तब भी बदी गुनाह देखा, इसका मतलब बदी गुनाह करने वाले डरते नहीं हैं। आज भी लोग बहुत सारे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी ये समझाया है, लोग गलत को गलत नहीं कहते, रिलेशनशिप्स को गलत नहीं कहते, आज लव मैरिजेस को गलत नहीं कहते, आज किसी के साथ फ्रॉड कर कर कुछ लिया जाए, हासिल किया जाए, गलत नहीं कहते। लोग हसद, मगरूरी, शेखीबाजी और तरह तरह से पापों को गलत नहीं कहते। लोग रस्मों को आज गलत नहीं कहते और कहते हम खुदा से डरते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आपको याद पता चल गया, खिदमत करना डर का नाम नहीं है। खिदमत तो एक ये है, यीशु मसीह ने तब कह दिया एंड पे कि तुम जाकर सब कौमों के सामने, लेकिन वो भी किनको कहा? शागिर्दों को। आज हर बंदा प्रचार तो देने लग जाता है लेकिन शागिर्द बनता ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरा शागिर्द कौन है? जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। यीशु ने कहा तब तक तुम मेरे शागिर्द बन ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी क्रूस ना उठाओ, खुदी का इनकार नहीं करते और मुझे फॉलो नहीं करते। 3 चीजें शर्त हैं प्रचार देने वाले की। खुदी का इनकार आज कौन करता है? कोई भी नहीं। जो दिल किया, जो दिल चाहा, जहां जाना चाहा, जहां आना चाहा, जिससे कुछ भी करना चाहा हम कर लेते हैं। सलीब उठाने का मतलब क्या होता है? क्रूस एक शर्मिंदगी की बातें सुनने की अलामत है। जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाई तो अक्सर लोग कहने लगे लगता है इसने वाकई कोई पाप किया होगा, इसने कोई ना कोई वाकई गलत काम किया होगा इस वजह से, जबकि यीशु मसीह को पता था और बहुत सारे लोगों को भी जो पता था, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था कि हाँ यीशु मसीह ने क्रूस हमारे पापों के लिए उठाई। वो क्रूस हम लोगों ने उठानी थी। अगर यीशु मसीह तब ना क्रूस पे चढ़ते तो फिर क्या होता? आज भी वही दौर चलता होता, फिकी फरीसी यहूदियों वाला, और आज वो दौर चलता होता और हर बंदा हमें घर घर से निकाल कर कहता चल भी क्रूस उठा, लकड़ी की बनी होती है, हम उठाते। तभी लोग हमें कहते लो जी ये चोर है, ये ऐसा ये वैसा, लेकिन यीशु मसीह ने खुद वो लानत खुद ली। लेकिन यीशु मसीह ने इसका मतलब
वो वाली क्रूज को मना कर दिया, लेकिन उसने उसके बाद कहा कि एक क्रूज को तुम सबको उठाना जरूरी है अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो। वो क्या है कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें बातें होंगी, तुम्हें लोग गलत समझेंगे। याद रखें, हर वो शख्स जो शागिर्द, रियल शागिर्द बनता है यीशु का, जो तीनों हुक्मों को अमल करता है, क्रूस उठाता है, खुदी का इनकार कर देता है और यीशु की पैरवी करता है, वो कभी भी लोगों के साथ मैच नहीं होगा। कि लोग हैं, हजार लोग ऐसे सोच रहे हैं और एक बंदा सिर्फ अलग सोच रहा हो सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों एक तरफ हो सकते हैं और एक रियल शागिर्द वो सब लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाकई रियल बनता है। तो आज आप क्या सीख रहे हैं कि खुदा किन लोगों से खुश है? ये आपने जान लिया, खुदा उनसे खुश है जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, यानी कि बदी से किनारा करते हैं।